Hello guys, in this video we will discuss the fifth phase of compiler design, that is code optimization. This topic is divided into three parts: code optimization. In this code optimization we will discuss in different categories like machine independent, machine dependent. In machine dependent we will discuss code optimization level, that is statement level, block level, loop level, function level, program level. Then we will move to the optimization technique. In this technique there are a number of different techniques like constant folding, copy propagation, strength reduction, algebraic simplification, common sub expression elimination, dead code elimination, and loop optimization. In this loop optimization there are different ways: code motion, loop merging, induction variable elimination, loop unrolling. Then we will also see code optimization that will be done on high level code optimization, intermediate code optimization, target code optimization, and next topics control flow graph, then basic blocks, live variables. In machine dependent, register allocation, use of addressing modes, peephole optimization, etc. These are the topics that are discussed in code optimization. We will discuss almost each technique one by one. In machine dependent, first we will see what is the requirement of code optimization. Code optimization का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, इस चीज को पहले हम लोग देखेंगे. इंटरमीडिएट कोड जनरेशन ICG introduces many inefficiencies like repeated evaluation of expressions, using variables in place of constants, extra copies of variables, improper location of statements. These are some inefficiencies that are found in our intermediate code generation. Code optimization removes such inefficiencies and optimizes the code. Improvement could be in terms of space, time or power consumption. जो भी हम इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे वो इम्प्रूवमेंट हमारा स्पेस, टाइम मिनिमाइज होना चाहिए, पावर कंजम्पशन मिनिमाइज होना चाहिए. ये सारी चीज़ों को हम इस कोड ऑप्टिमाइजेशन में देखते हैं. ड्यू टू ऑप्टिमाइजेशन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स माइट बी चेंज्ड एंड समटाइम्स बियॉन्ड द recognition. Example: inline functions, unrolls loops to minimize the number of iterations, elimination of induction variables, etc. Remove the programmer defined variables. Code optimization consists of a group of heuristics and depends on programs. Code optimization can be done on different level. हम लोग कोड ऑप्टिमाइजेशन को अलग अलग लेवल पे यूज कर सकते हैं, लाइक स्टेटमेंट लेवल ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉक लेवल ऑप्टिमाइजेशन, लूप लेवल ऑप्टिमाइजेशन, फंक्शन लेवल ऑप्टिमाइजेशन, प्रोग्राम लेवल ऑप्टिमाइजेशन. There are different techniques that we will use in our code optimization are constant folding. कांस्टेंट फोल्डिंग लोकल लेवल पे काम कर सकते हैं. कॉपी प्रोपगेशन कांस्टेंट और वेरिएबल बोथ के लिए डिस्कस करेंगे. ये लोकल और ग्लोबल दोनों हो सकते हैं. स्ट्रेंथ रिडक्शन लोकल लेवल पे, algebraic simplification local level, common sub expression local and global level,
dead code elimination global level and loop optimization at global level. लूप ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कोड मोशन, लूप मर्जिंग, इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन एंड लूप अनरोलिंग. Code optimization can be done on high level code optimization, intermediate level code optimization by using 3 address code and target code optimization in assembly code. Now we will discuss different technique one by one. First technique is called constant folding. Optimization technique का पहला तरीका constant folding, that is performed on local level. It is not always applicable. यहाँ हम जो भी कोड लिखते हैं, सपोज x इक्वल टू 4 इंटू 7 प्लस 5, तो इस स्टेटमेंट को हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं. 4 इंटू 7 दैट इज 28 प्लस 5. ऐसा लिखने से हमारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन टाइम रिड्यूस होता है, जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगा. ये कांस्टेंट फोल्डिंग जैसा नाम से हमको पता चल रहा है कि ये फोल्डिंग हम सिर्फ कांस्टेंट पे कर सकते हैं, वेरिएबल पे नहीं कर सकते हैं. लाइक x इक्वल टू 4 प्लस 7 इंटू y. इफ वी मल्टीप्लाई y विथ 7 देन वी विल गेट 7y. 4 plus 7y, that has no meaning, so we cannot perform variable folding. कांस्टेंट फोल्डिंग सिर्फ कांस्टेंट लोकेशन पे ही लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे 4 और 7 ये दो हमारे कांस्टेंट है जिसके बीच कोई ऑपरेशन है, जिस ऑपरेशन को हम मैनुअली परफॉर्म करते हैं. 4 इंटू 7 28 प्लस 5 ये हमारा सही है, मगर हम इस जगह पे इस तरह की टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते. सेकेंड टेक्निक हमारा कॉपी प्रोपगेशन है. कॉपी प्रोपगेशन कांस्टेंट के लिए भी कर सकते हैं और वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं, प्लस ये लोकल और ग्लोबल दोनों हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कांस्टेंट फोल्डिंग, सपोज हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू x प्लस z. इस दो स्टेटमेंट में x को हमें इस x इक्वल टू 4 की जगह पे यदि हम इस स्टेटमेंट को, इस पूरे स्टेटमेंट को हम इस तरह से कन्वर्ट कर दें y इक्वल टू 4 प्लस z, तो इससे हमको स्पेस मिनिमाइज होगा. x इक्वल टू 4, x वेरिएबल जो जहाँ पर हम अपने 4 को स्टोर कर रहे हैं, वह स्पेस हमारा इस स्टेटमेंट को इस तरह से कन्वर्ट करने पर बच जाएगा. तो कांस्टेंट फोल्डिंग के थ्रू हम अपने स्पेस को मिनिमाइज कर सकते हैं. इसलिए इस दो स्टेटमेंट को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर दें और इसको हम यदि यहाँ से हटा दें तो हमारा स्पेस रिमूव होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज होगा. इस दो स्टेटमेंट का फाइनल स्टेटमेंट हमारे पास होगा y इक्वल टू 4 प्लस z. इस तरह के टास्क हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करें, परफॉर्म करें, तो हमारा कोड सिंपल भी होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मिनिमाइज होगी. इसी तरह से वेरिएबल प्रोपगेशन के केस में x इक्वल टू a, y इक्वल टू x प्लस z, ये दो स्टेटमेंट यदि दिए हुए हैं तो हम इस x की जगह पे डायरेक्ट इस a को यदि यूज़ कर दें तो इस स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी और इससे हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज होगा. तो इस दो स्टेटमेंट्स का फाइनल स्टेटमेंट y इक्वल टू a प्लस z होगा. इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. a इक्वल टू 5, सपोज a इक्वल टू 5, b इक्वल टू a माइनस 2. बाई यूजिंग कॉपी प्रोपगेशन, यदि हम यहाँ पे कॉपी प्रोपगेशन यूज़ करें
तो ए की जगह पे 5 को रख दें, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 5 माइनस 2। अब 5 माइनस 2 यदि इस पर हम अपना कांस्टेंट फोल्डिंग अप्लाई करें तो b इक्वल टू 5 माइनस 2 की जगह पे हम b इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, और a इक्वल टू 5 का हमारा अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो सेम एक्सप्रेशन पर हमारा एक से अधिक टेक्निक अप्लाई हो सकता है। ये बाय ऑब्जर्वेशन हमको देखना होगा कि हम किस जगह पे कौन सी टेक्निक को अप्लाई करें, और उस टेक्निक को अप्लाई करने पर फिर नेक्स्ट कौन सी टेक्निक का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ हमने पहले कॉपी प्रोपेगेशन किया। कॉपी प्रोपेगेशन से हमें पता चला कि a इक्वल टू 5 डेड कोड हो गया, अनरीचेबल है, यूजलेस है, तो हम इस स्टेटमेंट को रिमूव किया, और अब हमारे पास स्टेटमेंट सिर्फ रह गया b इक्वल टू 5 माइनस 2, जिस पर हम कांस्टेंट फोल्डिंग लगाकर इसको और भी सिंपल बना दिया, b इक्वल टू 3। इस तरह से हम अपने स्पेस और टाइम दोनों को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉपी प्रोपेगेशन। Then next technique is strength reduction, that is performed at local level. Strength reduction का मतलब हो गया we will replace costlier instructions with cheaper instructions. Means जिस ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता हो उसको हम उससे लेस कंज्यूम ऑपरेशन में यदि कन्वर्ट कर दें तो इस टेक्निक को हम स्ट्रेंथ रिडक्शन कहेंगे। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है x इक्वल टू 2 इंटू वाई। एज वी नो, जैसा हम लोग जानते हैं कि स्टार का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस और माइनस से अधिक होता है। 1 स्टार टेक्स 32 to 40 different additions. 1 multiplication takes the time of 32 to 40 additions. तो एक मल्टीप्लिकेशन का टाइम यदि 32 एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बराबर है, तो यदि हम इस मल्टीप्लिकेशन को प्लस या माइनस में कन्वर्ट कर दें तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज होगा। इस स्टेटमेंट में x इक्वल टू 2 इंटू वाई, एक्स इक्वल टू 2 इंटू वाई, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई प्लस वाई। इस जगह स्टार मल्टीप्लिकेशन को हमने एडिशन में कन्वर्ट कर दिया, तो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करने से हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज हो गया। हायर टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन को लोअर टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसको और भी मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई शिफ्ट ऑपरेशन यदि यूज़ करें तो एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करने से आपका मल्टीप्लिकेशन डबल होता है, और एक बिट राइट शिफ्ट करने से हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होता है। तो मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू 4। सपोज कीजिए कि हमारे पास y का वैल्यू 4 है, तो इस 4 का बाइनरी ऑपरेशन निकाले। बाइनरी, इस डेसिमल नंबर को यदि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर दें तो इसकी बाइनरी वैल्यू होगी 100, और इसको यदि हम 5 डिजिट में कन्वर्ट कर दें तो लेफ्ट साइड 00 बैठा सकते हैं। यानी इस 4 का जो बाइनरी वैल्यू हो गया वो 00100, जिसकी वैल्यू 4 होगी। यदि हम इस y को लेफ्ट शिफ्ट करें, जैसा कि हम लोग जानते हैं लेफ्ट शिफ्ट के लिए डबल लेस देन यूज़ करते हैं, और एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए हम 1 यूज़ करते हैं। यदि हम ये ऑपरेशन इस बाइनरी नंबर पर करें, एक लेफ्ट शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पर ये सारे बिट एक एक बिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, और ये लास्ट 0 यहाँ से रिमूव होगा। यदि हम ऐसा करें तो
इस 0 को हमने यहाँ पे रखा, देन 1, देन दिस 0 0 और 5 बिट के लिए राइट साइड में एक 0 बैठा दें। तो हमारा ये 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करने से हमारे पास जो वैल्यू मिला 01000, जिसकी वैल्यू ये बाइनरी में 01000, जिसका डेसिमल वैल्यू होगा 8। तो इस तरह से यदि हम एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करें तो इसी की वैल्यू हो जाएगी 8, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, 4 + 4 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। और यदि हम एक बिट राइट शिफ्ट कर दे तो 2 से डिवाइड होगा, जैसा कि इस जगह पे लिखा हुआ है y = 4 इन डेसिमल, y = 4, और in binary we can write it 00100। बाइनरी वैल्यू इसकी ये होगी। अब यदि इसको हम एक बिट राइट शिफ्ट करें तो इसका जो नोटेशन होगा वो ग्रेटर देन 1। एक बिट से राइट शिफ्ट करने के लिए हम इस एक को इस साइड रखेंगे, एक बिट राइट शिफ्ट करेंगे तो ये 1 हमारा इस 0 की जगह पे होगा, ये 0 हमारा इस लोकेशन पे होगा और ये 0 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस 0 को हम यहाँ पे रख सकते हैं, ये 0 हमारा इसके पहले और एक और 0 हम लेफ्ट में डाल देंगे 5 बिट के लिए बनाने के लिए। अब इसकी वैल्यू यदि देखा जाए तो ये बाइनरी में है, इसकी डेसिमल वैल्यू 2 होगी। तो 4 को यदि 2 से डिवाइड करें देन वी विल गेट 2 इन डेसिमल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि राइट लेफ्ट शिफ्ट किया जाए एक बिट से तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है बाई 2, और यदि एक बिट राइट शिफ्ट करें तो उस नंबर का 2 से डिवीजन होता है। तो इस ऑपरेशन को यदि यूज़ किया जाए, शिफ्टिंग ऑपरेशन को यदि यूज़ करें तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी प्लस से कम होगी। स्टार की सबसे हाई टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा, इससे कम हमारा प्लस और माइनस का है, लेकिन प्लस से भी कम टाइम कंज्यूमिंग शिफ्टिंग का होगा, जिसमें हम लेफ्ट शिफ्ट कर दें तो हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस मल्टीप्लिकेशन को या तो प्लस में कन्वर्ट कर दें या इस तरह के लेफ्ट शिफ्ट में कन्वर्ट कर दें तो हमारा टाइम और भी मिनिमाइज हो जाएगा। इसमें सबसे बेस्ट मेथड होगा ये शिफ्ट मेथड। इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन। देन नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट टेक्निक इज अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन, जिसको कि हम लोग लोकल लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं, कैंसिलेशन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन x = y + 0, किसी भी नंबर में यदि 0 का एडिशन हो तो आपका वैल्यू वही होता है, इसलिए हम डायरेक्ट मैनुअली y + 0 को सिंपल y लिख दें तो यहाँ जो एडिशन ऑपरेशन है उसकी टाइम बच जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा x = y, जिसको आइडेंटिटी लॉ भी कहते हैं। किसी भी नंबर को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मालूम है कि उसकी वैल्यू वही रहती है। तो इस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को रिमूव कर हम डायरेक्ट x = y लिख दें, जिसकी वैल्यू वही होगी जो यहाँ पर है। तो इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन टाइम रिड्यूस होगा। वैसे ही यदि किसी नंबर को सेम नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से इस सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन को रिमूव कर हम डायरेक्ट x = 0 लिख सकते हैं। इस तरह का काम हम मैनुअली अपने प्रोग्राम में करें तो इस मेथड को अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट टेक्निक इज कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, जिसको हम लोग डैग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं फॉर सिंपल एक्सप्रेशन
और ये लोकल लेवल पे होगा। यहाँ एक एक्सप्रेशन है x इक्वल टू ए प्लस बी इंटू बी। इसमें a प्लस बी हमारा कॉमन है। ये इस कॉमन सब एक्सप्रेशन को हम चाहे तो एलिमिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डैग। इस जगह हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर प्लस, इस प्लस के दो पार्ट हो गए, इस प्लस के दो पार्ट हो गए, ए प्लस बी और इसका राइट चाइल्ड होगा ए प्लस बी इंटू बी, ए प्लस बी इंटू बी। फर्दर यदि इस जगह पे हम ऑपरेशन देखें तो इस जगह का ऑपरेशन होगा प्लस, इस a प्लस बी को हम ऑपरेटर के थ्रू यदि दिखाए तो प्लस और इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड हो जाएंगे a और b। इस जगह पर इस स्टार को यदि हम यहाँ पे रख दे तो इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा a प्लस बी एंड b, और इस a प्लस बी का प्लस ऑपरेशन यूज करके इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड a और b हम यहाँ दिखा सकते हैं। इस जगह पर ये दो एक्सप्रेशन हमारा कॉमन है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया है प्लस ए बी, ये हमारा प्लस ए बी है। फिर इस प्लस को यूज़ किया, ये प्लस हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्लस के हमारे दो नोड होंगे, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। लेफ्ट में हमने इस प्लस ए बी को रखा और राइट में हम इस स्टार को रखे। इस स्टार के अगेन दो नोड होंगे, दो चिल्ड्रेन होंगे, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। लेफ्ट में हमारा प्लस ए बी है, तो डायरेक्ट इसको हम इस प्लस से कन्वर्ट कर दें तो इसे रिपीट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और इसके राइट साइड में हमारा बी है, तो इसके राइट साइड को हम डायरेक्ट इस बी से कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को हमने रिपीट नहीं किया। तो इस तरह के एलिमिनेशन को हम कहते हैं कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। इसी तरह से डेटा फ्लो एनालिसिस के थ्रू हमारा ग्लोबल एलिमिनेशन हो सकता है, डैग के थ्रू हमारा लोकल होगा, और डेटा फ्लो एनालिसिस के थ्रू हम लोग ग्लोबल एलिमिनेशन का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड डेड कोड एलिमिनेशन, जो ग्लोबल लेवल पे होगा। इस डेड कोड एलिमिनेशन का मतलब हो गया कि अनरीचेबल और नॉट यूजफुल स्टेटमेंट को हम अपने प्रोग्राम से रिमूव करते हैं। ये काम करने के लिए लाइव वेरिएबल एनालिसिस यूज किया जा सकता है, यानी लाइव वेरिएबल एनालिसिस के थ्रू डेड कोड एलिमिनेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। हम लोग बाद में देखेंगे कि लाइव वेरिएबल कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जिसका कि मैक्सिमम यूज होता है, और यूनिवर्सिटी प्लस गेट और नेट एग्जामिनेशन में भी लाइव वेरिएबल के बारे में पूछता है, जिसको कि हम पार्ट 3 में देखेंगे। यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अभी हम बाय ऑब्जर्वेशन डेड कोड एलिमिनेशन का काम कर रहे हैं, बाद में हम इसको लाइव वेरिएबल से कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू 2 सम स्टेटमेंट y इक्वल टू a इंटू बी प्रिंट ऑफ y। तो इस जगह पे हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 2 का कहीं कोई आउटपुट में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इवन इसका इंटरमीडिएट ऑपरेशन भी कहीं रिक्वायर्ड नहीं है। तो वैसे केस में x इक्वल टू 2 को हम रिमूव कर सकते हैं, जो कि अनरीचेबल है, नॉट यूजफुल है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हटाना डेड कोड रिमूवल कहलाएगा। इसी तरह के कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि ऊपर में हमने बताया था स्टेटमेंट लेवल पे हमारा ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, लूप लेवल पे हो सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे हो सकता है। तो यदि हम इसको एक दूसरे एग्जांपल से देखें, x इक्वल टू 1 इफ x देन प्रिंट ऑफ ओके एल्स प्रिंट ऑफ नॉट ओके। इस पूरे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को यदि हम एनालाइज करें तो x इक्वल टू 1, जैसा कि हम लोग जानते हैं, यदि किसी कंडीशन में किसी वेरिएबल का वैल्यू यदि 0 हो
तो हम उसको फॉल्स कहते हैं, और नॉन जीरो हो तो वैसे केस में वो हमारा ट्रू कहलाता है। इस जगह पे यदि पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वैल्यू यदि यहाँ पे दिया हुआ है तो वैसे केस में ये ट्रू माना जाएगा। तो x इक्वल टू 1 और इसके नीचे लिखा हुआ है इफ x देन प्रिंटफ ओके, प्रिंटफ ओके। एल्स यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो वैसे केस में हम यूज करेंगे प्रिंटफ नॉट ओके, प्रिंटफ नॉट ओके। इस पूरे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में हम यहाँ पर देख रहे हैं x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 का मतलब हो गया दिस कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू ड्यू टू दिस रीजन। यदि किसी वेरिएबल का वैल्यू नॉन जीरो हो तो वो ऑलवेज ट्रू होता है, यानी ये परमानेंट ट्रू है। यदि ये परमानेंट ट्रू है, फॉर एवर ट्रू है, तो इस स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, कभी भी हम लोग इस स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तभी इसका हमारा एक्सक्यूशन होगा। तो जैसा ही यहाँ पर x की वैल्यू बता रहा है कि ये परमानेंटली ट्रू है, तो यदि परमानेंटली ट्रू है तो इस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, और यदि ये परमानेंट ट्रू है तो हमारा सिर्फ प्रिंट होगा प्रिंटफ ओके। यानी इस पूरे को यदि सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो यदि हम प्रिंटफ ओके लिख दें, प्रिंटफ ओके, तो ये पूरा सेट ऑफ स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट से रिप्लेस होगा जिसको हम लोग कहेंगे प्रिंटफ ओके। इस तरह से आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारे स्टेटमेंट्स में सिर्फ एक स्टेटमेंट्स हमारा काम का है जो हमारा आउटपुट में आएगा। इतने बड़े कोड को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम इस डेड कोड एलिमिनेशन के थ्रू हम इस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की जगह पे सिंपल स्टेटमेंट प्रिंटफ ओके लिख सकते हैं। This type of technique is called dead code elimination. नेक्स्ट टेक्निक हमारा लूप ऑप्टिमाइजेशन होगा, और ये ग्लोबल लेवल पे है, जिसको कि हम लोग टू अप्लाई लूप ऑप्टिमाइजेशन वी मस्ट डिटेक्ट लूप्स। किसी भी प्रोग्राम में लूप ऑप्टिमाइजेशन को यूज करने के लिए सबसे पहला काम हमारा होता है लूप को डिटेक्ट करना। देन टू डिटेक्ट लूप्स वी यूज कंट्रोल फ्लो एनालिसिस। किसी भी प्रोग्राम में किसी लूप को फाइंड आउट करने के लिए हम कंट्रोल फ्लो एनालिसिस यूज करेंगे यूजिंग प्रोग्राम फ्लो ग्राफ। टू फाइंड प्रोग्राम फ्लो ग्राफ, PFG शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्राम फ्लो ग्राफ, टू फाइंड PFG वी रिक्वायर्ड टू फाइंड बेसिक ब्लॉक। प्रोग्राम फ्लो को बनाने के लिए या प्रोग्राम फ्लो ग्राफ के लिए हमें बेसिक ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। अ बेसिक ब्लॉक इज ए सीक्वेंस ऑफ 3 एड्रेस कोड्स वेयर कंट्रोल एंटर्स एट द बिगनिंग एंड लीव्स एट द एंड विदाउट एनी जंप्स और हॉल्स। हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स यदि दिए हुए हैं बेसिक ब्लॉक में, तो इस बेसिक ब्लॉक में हमारा एक या एक से अधिक एंट्री पॉइंट होते हैं और एक या एक से अधिक हमारे एग्जिट पॉइंट हो सकते हैं, बीच से हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते। तो इस तरह का जो ब्लॉक बनेगा दैट इज कॉल्ड बेसिक ब्लॉक। वी विल डिस्कस दिस बेसिक ब्लॉक इन पार्ट 2 इन डिटेल्स। इस लूप ऑप्टिमाइजेशन में बाय ऑब्जर्वेशन हम लोग जो मेथड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड कोड मोशन और फ्रीक्वेंसी रिडक्शन। कोड मोशन का काम है यदि किसी लूप के अंदर में कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसका उसके आइट्रेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, तो उस स्टेटमेंट को हम लूप के बाहर टॉप या बॉटम में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। ये लूप हमारा n टाइम्स
आइट्रेट होगा, रिपीट होगा, और n टाइम x इक्वल टू 10 हमारा असाइन होगा, जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहा है। तो वैसे केस में इसका चूंकि कहीं पर कोई इफेक्ट हमारे रिजल्ट पे नहीं आ रहा है, तो हम इस x इक्वल टू 10 को इस लूप के या तो बाहर कर दें, या इसके टॉप में कर दें, या इसके बॉटम में कर दें। तो यदि इसको हम ऊपर कर दें तो हमारा ये स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट सिंपल बन जाएगा, और फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, इसमें n टाइम आइट्रेट होगा और ये सिर्फ एक बार हमारा ऑपरेट होगा। तो इस तरह से n-1 टाइम्स आइट्रेशन असाइनमेंट से हम बच गए। तो n-1 टाइम्स असाइनमेंट से बचने का मतलब हो गया कि हमारा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी मिनिमाइज होगा। तो इस तरह से कोड मोशन के थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी रिपीटिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा इस लूप ऑप्टिमाइजेशन का टेक्निक होता है, दैट इज कॉल्ड लूप मर्जिंग। इस जगह पे हमारा दो लूप दिया हुआ है, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस एंड x इक्वल टू x प्लस i। दूसरा लूप हमारा j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस एंड y इक्वल टू y प्लस 2 इंटू j। इस जगह हम देख रहे हैं कि i और j ये दो इंडेक्स वेरिएबल है, और दोनों का स्टार्टिंग और कंडीशन प्लस इंक्रीमेंट सेम है। तो जितनी बार हमारा फर्स्ट लूप चल रहा है उतनी ही बार हमारा सेकेंड लूप भी चल रहा है, और i की जितनी बार हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है उतनी बार हमारी j की भी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो वैसे केस में हम इस j को यदि i से रिप्लेस करते तो हमारा ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस एंड x इक्वल टू x प्लस i एंड y प्लस 2 इंटू जे की जगह पे हम i कर दें तो इसका भी वही वैल्यू आएगा जो यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसा करने से हम इस सेकेंड लूप के n टाइम आइट्रेशन से बच सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। अदर और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं इस लूप ऑप्टिमाइजेशंस के, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द